जय हिंद एवरीवन, दिस इज शीनू कवात्रा एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट एपिसोड जो एक खूबसूरत हसीना के साथ है यहाँ पे। आप जल्दी देख लोगे ये कौन है। हमने एक ही बार इंटरेक्शन किया था एक इवेंट पे एंड सिंस देन शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। एंड आपको सबको पता है कि हमारे पॉडकास्ट में मैं सिर्फ इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ को ही लेके आऊँगा जो शायद आपको और ज़्यादा इंस्पायर कर सके। सो इनका इंट्रोडक्शन ये ऐसा है कि ये 20-22 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको देख के लगता होगा कि यार कोई बूढ़ा ही इंसान होगा जो इस पॉडकास्ट में आया होगा, बट देखने के बाद यू विल डेफिनेटली कम टू नो दैट शी इज़ समवन हु डजंट लुक 24 ऑल्सो। सो दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू हर फ्रॉम माई साइड। एंड जिनके नाम में लव है सो वो इंसान ही अलग है। वेलकम ऑन आवर शो रुतिका मालविया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई नो ट्रैवलिंग टू थाने इट इज़ अ बिग टास्क और स्पेशली वेस्टर्न साइड वालों को तो रो धो के बुलाना पड़ता है कि यार थाने आ जाओ। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई नो दैट यू हैव बीन रनिंग बिजी विद योर स्केड्यूल्स। ये लड़की है जो इंडिया में कम रहती है बट इंडिया के लिए काम करती है और सिर्फ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। लकीली ये स्टार्ट हुआ है, साल स्टार्ट हुआ है and I got your dates, and thank you so much for this and thank you for coming here and talking to us on Insan Bano podcast. Thank you so much, Chinu, for inviting me. I think our first interaction in the last event was insightful, and the kind of work that you do is really commendable. तो टाइम तो निकालना ही था. Thank you so much. And since last 2-3 months we are connected on social media and we talk about everything and anything, and that's how we got connected. And the most inspiring thing is I loved about yourself is you are an independent woman. You are someone uh, who is seen as independent. I want to know personally now who is Rutika, yeah, what Rutika does, because I know I've seen several posts, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आपकी ये कंपनी है वो कंपनी है. So I want to know first who is Rutika as a personality, and second what is your work. Okay, it's a very tough question to answer. Who am I? Because as you already know, I love myself way too much. मैं अपनी favorite हूँ. So, so it is very difficult to answer. But I think to cut it short, I am somebody who loves to travel a lot, who enjoys being in luxury, but at the same time, I like the minimalist living, and I believe that kindness and compassionate is the key thing in this world. There is nothing bigger than love, and love is all we all need. So I think, and my name itself, like you said, Malavya, love is in it. प्यार ही इनके नाम में है तो प्यार कैसे नहीं मिलेगा यार. सो आई थिंक प्यार ही एक चीज़ है जो हम दुनिया में सबको बांध के रखता है. एंड वी आर टाइड विद वन थिंग. वी ऑल नीड लव, वी ऑल वांट लव. सो I think that is the only thing I follow in my life, and that's the kind of personality that I am. Right. So that's about me in a very short description. Love is what Rutika is. That's all. That's something beautiful. Yeah, people always say that कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वैसी personality हूँ. When you say that love is equal to Rutika, it symbolizes everything. It symbolizes universe. It symbolizes bond, relationship, and everything together. So yeah, so thank you, love is equal to Rutika, for being on our show. So what about work यार. बहुत सारा काम करती तुम, वो मैंने देख लिया है. इंस्टाग्राम पे तो दिखते रहता है कोई ना कोई अलग अलग पोस्ट है. सो ये काम क्या करते हो, इतना टाइम कहाँ से मिलता है, कैसे मैनेज करते हो? Honestly, I want after this show there is some woman who is watching you should get inspired to do so much of work at this 24 hours time. See, my only goal in life is to aspire to inspire people. So I don't think कि भाई कुछ करने से कोई इंस्पायर होगा तो मैं वो चीज़ करूँ. मेरा एक ही चीज़ है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रही हूँ, so ऐसा हो कि I set an example for people to change their lifestyle. Okay, that's what I do. With my post also, when I put something on Instagram, and you know, people do come up to me on my DMs and tell me, whatever you post, it's very much relevant to us.
sometimes the emotional quotes that I put up, and a lot of people tell me that why are you so vulnerable on your Instagram pages, and I'm like, we all are vulnerable, and vulnerable is sexy and it's bold and it's courageous. What is something to be so ashamed about it? So that's one thing. What I do is I started working when I started at the age of 14 when I was in my 8th standard. It wasn't a compulsion. 8th में शायद मैं तो एक मुझे याद है किस्सा यार, और सॉरी टू कट यू डाउन, बट 8th में आई वाज राइटिंग अ लव लेटर इन हिंदी बिकॉज इंग्लिश में लव लेटर लिखा नहीं गया था मेरे से, एंड वो लव लेटर मैंने एज अ दोस्त जैसा लिखा था, सो दैट कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊँ तो मैं बोल दूँ यार दोस्त के लिए लिखा है करके, इट इज़ नॉट अ लव लेटर. सो आई रिमेंबर दिस विद 8th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज राइटिंग अ लव लेटर इन हिंदी, यू वर वर्किंग. सो या टेल मी. So for me, working was not out of compulsion. Matlab, my family is pretty much well to do, so I never had financial issues in my life. It's just that I'm very impulsive as a person, so I can't sit idle. So for me, while studying, I was like, I wanted, and I always had this dream when I was young that I'm holding an award, Forbes का award मिल रहा है या best business women का award मिल रहा है. तो बचपन से ही वो था. गुजराती हूँ तो business तो blood में ही है. So it was like कि चलो ठीक है कुछ तो करते हैं. So call center was the easiest thing because English अच्छी होती थी. इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, बचपन से इंग्लिश. इसलिए शायद मुझे इंग्लिश में कॉल सेंटर की जॉब कभी सोची नहीं, क्योंकि मेरी इंग्लिश सही नहीं थी, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था. हम तभी वोडाफोन का 3G होता था. हज का वो पपी वाला जो डॉग का आता था एड्स, सो तभी वो इंडिया में आ रहा था. तो वी वर वर्किंग इन 3G कॉल सेंटर जो मलाड माइंड स्पेस पे था. सो स्कूल करके देन रात को कॉल सेंटर. सो सिंस देन आई स्टार्टेड वर्किंग. उसके बाद बहुत सारे स्टिंट किए एज अ प्रमोटर, एज अ हॉस्टेस, छोटे छोटे. वाइल कॉलेज में भी जब मैं थी तो मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स किए हैं, इवेंट्स किए हैं छोटे छोटे. माई अंकल इज़ अ डायरेक्टर. सो फिर अंकल ने बोला कि अभी तू ऐसे छोटे छोटे काम करी, वाई नॉट ज्वाइन. So I joined him. His name is Mr. Kundan Shah. So Kabhi Haan Kabhi Na movie. So from there we were like working together, working on a script. तो यूं ही सब डायरेक्टर्स सबके साथ बैठना, नरेशंस पे बैठना, स्क्रिप्ट नरेशन, स्टोरी नरेशंस, मूवी कैसे डायरेक्ट होती है, सिनेमेटोग्राफी कैसे होती है, आर्ट कैसे डायरेक्ट होता है, पूरी फिल्म कैसे बनती है प्रिसाइसली. उन सब डिस्कशंस में बचपन से ही बैठती आई हूँ. सो उनके साथ 2 मूवी एज एन असिस्टेंट एडी किया मैंने. फिर उसके बाद मेरे को बहुत सारे और काम आने लगे बिकॉज पीपल गॉट स्टार्टेड टू नो मी. तो मैंने 250 टेलीविजन कमर्शियल्स एज कास्टिंग एंड प्रोडक्शन हेड किया है. सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कास्टिंग. सो वेल मैं कॉलेज भी कर रही थी, साथ में कास्टिंग एंड प्रोडक्शन हाउस चल रहा था. Because I was getting into that zone of entertainment, and I think entertainment is something which called me, which was like यही है जो मुझे करना है. क्योंकि there is newness in everything. I get bored of things very easily, so I'm very frivolous that way also. But I would not call it as a frivolous nature, but ठीक है, मोनागमी से मुझे प्रॉब्लम है. ऑब्वियसली जब आप एक काम मैं ऐसा बन रहा हूँ कि आई गेट बोर्ड ऑफ माई लुक्स, सो आई कीप चेंजिंग माई लुक्स एवरी नाउ एंड देन, so that I am motivated myself. Right. Because I think the changing habit is the motivation factor. Absolutely. Because the more you keep doing something new, that gives you motivation, that gives you failures, that gives you motivation. Right. And yeah, so that attitude and that nature is सबसे best nature I feel. I think it's the best because it shows that you are ready to take the risk. It shows that you are very experimentative. And the more you experiment and take risks, the more the chances of success. Even if you fail, you learn out of it. For me, failure is the success because success नहीं होता जब तक आप fail नहीं होते हो. तो और उसकी वैल्यू भी आपको नहीं तब पता चलती है जब आप तक फेल नहीं होते. और मैं तो बहुत फेल हुई हूँ लाइफ में हर चीज़ में. So even though I've been a topper in school and everything, but my personal life has always been a setback. चाहे कुछ भी occasion हो या कुछ भी हो. So that negativity, I drive that into my work and I get succeed in work, and I think that gives me a good pleasure. Lovely yaar. This is again a factor which everyone should learn about it. Ke obviously our podcast is based on one formula, that is success. Struggle is equal to success. Yeah. So and you rightly said that a lot of struggles have given you success, a lot of failures have given you success, and I feel the more people enjoy failures, they are more successful now. Yeah.
सो जो भी हिस्ट्री पकड़ के देख लो यार, कि जो भी लोगों ने अपने अपने फेलियर्स को एंजॉय किया, दे आर सक्सेसफुल, they have been recognized. So while doing all of these things, obviously there is a family behind. There's mom, dad, there are other family members. So obviously you need family support, you need that backbone support. So tell me यार, support था नहीं था, कैसे हुआ चीज़ें, क्योंकि मेरी भी अजीब गरीब स्टोरी रही है. कभी फैमिली सपोर्ट था और दिखता नहीं था, समझ नहीं आता था बिकॉज चीज़ें और कुछ बोलते थे. सो टेल मी योर बैक एंड स्टोरी. So it is a bit tricky to say this, but initially I didn't have any support. Job wise I always had that support कि हाँ तू जा काम कर ये वो, but when I started the company my parents were not into it because my dad was like तुझे क्या ज़रूरत है कमाने की, you know, I'm there pretty sorted है, family कोई financial issue है नहीं per se, तो क्यों कमाना है, क्यों करना है, जॉब कर ले आराम से, you know, why bother. So that was one reason, and of course my dad and my mom were pretty conservative earlier as compared to what they are now. So I think you know, people say that parents have to teach their kids. I feel even kids can teach their parents to an extent to change them. हर parents rigid होते हैं, conservative होते हैं, especially हमारे Indian families में. बट वो चेंज हो सकता है प्यार से, हल्के धीरे धीरे से, अगर आप उन्हें मौका दो और आप उनको समझाओ कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सही जगह पे जा रहे हो, आप सही तरीके से चीज़ें कर रहे हो. सो 8 साल मैंने मेरा एजेंसी बिजनेस जो मैंने 2010 में स्टार्ट किया था वो मैंने हाइड करके रखा था आफ्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिजनेस ही अपने पेरेंट्स से हाइड करके रखा था. That is definitely I suppose needed, yeah, because when you have to grow long, you have to take some decisions where it is for yourself and not for anyone else. So मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि सुनो सबकी करो मन की. I have always been a little bit rebellion, but I'm very silent person also. So मैं ड्रामे नहीं क्रिएट करती, मैं दिखावा तमाशा ये सब मैं नहीं कर सकती, शो ऑफ मैं नहीं कर पाती, पर मेरा इतना चीज़ है कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, आप चाहे कितना भी बोल दो, बिकॉज मुझे बाद में ये चीज़ नहीं करनी है कि मैं रिग्रेट करूँ लाइफ में कि मैंने ये नहीं किया और मैं किसी और पे ब्लेम डालूँ कि इनके वजह से मैंने ये नहीं किया या उसके वजह से मैंने ये नहीं किया. मुझे वो सिनेरियो ही अपने लाइफ में नहीं चाहिए कि मैं किसी और पे ब्लेम डालूँ. किया अच्छा हुआ मेरे वजह से, किया गलत हुआ वो भी मेरे वजह से. सो आई वुड लाइक टू डू इट दैट वे. तो मैं हमेशा ऐसे था कि खुद से करो ये करो. मैंने 8 साल छुपाया. I was dating somebody back then, so he also had his own company. So I used to tell my parents that I'm doing a job. So he used to give me monthly 30K का salary check every month, and I used to show it to dad and give it to my dad. हमारे घर में एक चीज़ पहले से है कि जो डैड ने बोला वो पत्थर की लकीर है. And whatever we've earned so far, मैंने भी इतने सालों में जितना भी कमाया है, the check always goes home. Then dad distributes to everyone and it comes into our account to spend. So वो पहले से चल रहा है रिचुअल. तो वो चेक सीधा जाता था पापा को, पापा बैंक में डिपॉजिट करते थे, तो ही वॉज प्रीटी सॉर्टेड कि हाँ ये तो जॉब कर रही है कुछ नहीं, बट बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है वो एक अलग ही स्टोरी थी. It turned out that somebody was trying to manipulate my parents and was trying to, बोलते हैं ना relative ही घर तोड़ते हैं. So वैसा चीज़ हो रहा था. Somebody tried कि भाई हम बता दे तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा. There was this jealousy around. They tried doing that and उन्होंने घर पे आके पापा को सब बता दिया कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो सब कुछ you know हैंडल कर रहा है and all that stuff, and इसकी तो कंपनी है, वो कोई जॉब वॉब नहीं करती वहाँ पे, वो तो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स है, दिस दैट एंड ऑल, 90% बिजनेस यही हैंडल करती है ऐसा वैसा. तो पापा बोले अच्छा कितना कमाती है. सो उन्होंने एक फिगर बोला और पापा बोले अच्छा मेरी बेटी इतनी कमा लेती है, तो मुझे तो 30,000 देती है, बाकी पैसे उड़ा दिए उसने. तो उन्होंने फिर मुझे सामने बुलाया, कन्फ्रंट किया और उन्होंने बोला अरे तुमने ऐसे से किया, तुम्हारा ये चल रहा है. दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड कि ओके आई एम डूइंग समथिंग गुड. All those late nights, coming home late, you know, going out for networking, going out for events, traveling all over the world. तब तक मैं already सब जगह travel करती थी. So इतना सब travel वो एवे ही नहीं था. मुझे वहाँ की गवर्नमेंट इंडिया से बुलाती थी to talk about India. So he got impressed finally. And ऐसे नहीं थे मेरे डैड के वो मना करते थे. But it just कि he had this fear कि
फेल हो गई तो मेरी बेटी कैसे कोप कर पाएगी शायद. सो वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से था कि नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट. तो समझ में आया मुझे, तो धीरे धीरे वो भी चेंज हुए. अब मेरे डैड मेरे कंपनी का फाइनेंस हैंडल करते हैं पूरा. पूरे मेरे सारे इवेंट में सबसे पहले वो आगे रहते हैं, सबकी सैलरी सब कुछ, मतलब पैसे के रिलेटेड जितना भी चीज़ है डैड देखते हैं. एंड मेरे इवेंट्स में जब वो बाकी लोगों से मिलते हैं, लाइक मिस्टर मनीष मंदाना हैड काम, जो बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे मिले हैं. तो आई एम तो एप्पल ऑफ हिज आई, सो मेरे मेंटर भी है वो. तो वो उन्होंने पापा से बात की. फिर रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जो मार्केटिंग हेड है उन्होंने बात किया. सो ऐसे जब इंडस्ट्री के लोगों से जब पापा मिलते हैं मेरे इवेंट्स पे, कॉन्फ्रेंसेस पे, और वो लोग जब तारीफ करते हैं तो पापा को अब लगता है कि हाँ भाई लड़की कुछ कर रही है. ठीक है, तब तक तो ऐसे था कि भाई आती है जाती है मीटिंग करती है, पता नहीं क्या ही काम करती है. बट या योर पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड यू फर्स्ट, मेरे को ये समझा है. और पेरेंट्स ना ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं रिलेटिव्स की वजह से. मैंने ये देखा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिलेटिव्स के शायद बच्चों ने कुछ अलग किया है, हमारे बच्चे डाउनफॉल नहीं आ जाए, हमारे बच्चे डिप्रेस नहीं हो जाए, बाहर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वो हमें ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टिव रखते हैं. सो व्हेन आई सी दैट वेस्टर्न कल्चर वेयर पीपल लाइक आफ्टर 18 यू आर मैच्योर्ड, गेट आउट ऑफ द हाउस, स्टार्ट अर्निंग फॉर योरसेल्फ एंड एवरीथिंग, वो चीज़ अभी थोड़ी थोड़ी हमें भी चाहिए. वेयर हैंड होल्डिंग हो, हैंड होल्डिंग के साथ साथ में वी नीड आर इंडिपेंडेंसी ऑल्सो. सो ये हैंड होल्डिंग एंड इंडिपेंडेंसी व्हेन इट विल कम टुगेदर टू अस, इट विल बी अ डिफरेंट फैक्टर. ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड अ सोशल सर्विस थिंग, मुझे तो बोला था कि यार खुद तो कमा ले, पहले दूसरों को सेवा करने जा रहा है. तो कैसे ये उन लोगों की बात है जो आपके लिए जो पैसे कमाने के बाद ये करते हैं. तो जनरली वेन एवर पीपल सी एज मी एज अ सोशल एक्टिविस्ट, दे ऑलवेज फील दैट आई एम 55-60 years old हु हैज़ बहुत ज़्यादा पैसा कमा के बहुत बड़ा पेट लेके घूम रहा है और काम कर रहा है करके. बट इट इज़ वाइस वर्सा. इट इज़ लाइक यूथ नीड टू कम एंड youth like you who has stood up so well to do the business, to come as an entrepreneur, because आप शायद तब से बिजनेस कर रहे हो जब इंडिया में एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं था यार. हाँ, मतलब अभी क्रेज हुआ है दैट एवरी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. एवरी यंग किड वांट्स टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. लोग जॉब छोड़ रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर. एंड आई थिंक इट्स प्रिसाइसली बिकॉज पता है जब हमने करियर शुरू किया था, we have slogged our asses to earn even 30K a month. True. Nowadays, kids get everything when they start only, they start with 35, 40, 50 ka package. Right. So they've not slogged their asses. Right. So अभी आप जब हायर भी करते हो बंदों को, वो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है when I have to hire a good team. Very difficult यार, very difficult. अरे सीवी में 4 चीज़ लिख के लेके आएंगे, हॉबी में लिख के आएंगे डांसिंग, ड्राइंग, डिजिटल एजुकेशन, और चाहिए 40,000 रुपये. अबे हॉबी मतलब हॉबी स्किल होती है आपकी स्किल क्या है? कम्युनिकेशन इज अ स्किल, पब्लिक स्पीकिंग इज दैट शुड बी अ हॉबी नाउ. दीज थिंग्स लाइक डांसिंग, ड्राइंग, अभी मैं क्या करूँगा? तुम्हें कॉर्पोरेट में बिठा के नचाऊँ? Absolutely. And it is very surprising that because when you tell them to do something on the job, they know nothing. True. And when you tell them कि अच्छा ठीक है, suppose he is the cameraman, we tell him कि चलो कैमरा पकड़ो, इसको ऐसे करो, अच्छा ठीक है इसका एडिट भी कर देना, अच्छा थोड़ा अंदर से पानी ले आना. They get offended. True. I had an intern, she got offended at me. She's like, मेरा काम पानी लाना नहीं है. I said hello. मैं किचन में, हमारा ऑफिस है, हमारा पेंट्री है, जब हमारा प्यून नहीं होता है या वो भी बिजी होता है काम करने में कुछ, मैंने स्टाफ के लिए सबके लिए चाय बनाई है, तो मैं काम वाली हो गई. सो इट इज़ वेरी फनी दैट यू नो टुडेज जनरेशन ऑफ किड्स, दे डोंट हैव वो चीज़ें जो हम पहले करते थे. यू नो अपना समझ के कोई नहीं काम करता. भले सब बोलते कि कंपनी हमारी फैमिली है, बट कोई फैमिली मानता नहीं है. And they think entrepreneurs, you know, business owners don't think of them as a family. We do. Right. Of course, we have to run our business, so we replace people. Okay. ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉन्सेप्ट है. पीपल, आई रिमेंबर या माई फर्स्ट सैलरी वॉज पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज 8,500 रुपया. एंड घर आते आते वो सैलरी 5,000 हो जाती थी. एंड आई वॉज वर्किंग फॉर 13 hours. That was post graduation when I was in second year or something. उससे पहले जब I was working in my own dhaba, I used to get 2 to 3 rupees as a tip. 5 रुपये टिप was the maximum tip which I used to get जब हमारा खुद का ढाबा था 2006 में. So
The journey is that. The work is that. You need to be ready for everything. And that's where we learn na the values that we ingrain now has come because we've done every kind of work. Right. टुडे इफ यू मेक मी सिट एंड टेल मी कि तू एडिट कर ले वीडियो, मैं एडिट कर दूंगी. आप मुझे बोलोगे कैमरा एंगल बता दे, मैं आपको एंगल्स बता दूंगी. आप मुझे बोलोगे कि यू नो डिजाइनिंग देख ले, तो मैं डिजाइनिंग देख लूंगी. दैट इज बिकॉज वी हैव वॉकड थ्रू ऑल दो स्टेजेस. आज के बच्चे बस वो इतना सा कुकून में हो गए हैं सारे के सारे. नहीं यार, और लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ 4 शब्द पढ़ लिए, 4 एग्जाम्स दे लिए तो हमें पगार मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा. ये एक कल्चर ही गलत चालू हो गया है. वेयर एक ट्रेंड, ये हर साल का ट्रेंड है कि MBA करना है. पहले इंजीनियर बनना था, सबको इंजीनियर बनना था. मेरे टाइम पे MBA का ट्रेंड था, MBA करना है. अभी हो गया कि क्रिएटर बनना है, तो हर एक जन क्रिएटर बन के बैठा है. इंस्टाग्राम पे सबको 200 लाइक्स चाहिए, 5000 लाइक्स चाहिए, 10,000 लाइक्स चाहिए. बट क्या जिस्ट में जाना है किसी को नहीं समझा. इट इज़ अ वो भेड़ चाल वाली चीज़. ये क्राउड कर रही है, हम भी करते रहे. सो इट इज़ इंस्पायरिंग टू मीट पीपल लाइक यू हु हैव लिटरली स्ट्रगल्ड टू बी हियर. एंड स्ट्रगल का मतलब वो एक्चुअल स्ट्रगल था वेयर यू आर नॉट टेलिंग योर फैमिली मेम्बर्स. सो 8 साल हाइड करना इज़ अ बिग डील यार. एंड लोग रिलेशनशिप हाइड करते हैं फैमिली से, बट आपने एक पूरा बिजनेस हाइड कर दिया. सो एक बहुत बड़ी बात थी यार. एंड सिमिलर थिंग आई हैव ऑल्सो फेस्ड वेयर माई मॉम, माई यंगर ब्रदर वेर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी. दे डिडंट अलाउ मी टू गो आउट समवेयर वेयर आई, उनको लगता था कि मैं हमेशा सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूँ तो मेरे साथ लोग चीट कर लेंगे, जो आज भी करते हैं. बट दैट इज़ अ learning to me. So people come and ditch you, cheat you, betray you, and it's their karma. So अपना कर्मा का खुद खाएंगे यार, हम क्यों फिर उसकी टेंशन ले. When it is coming about you were talking about struggle, success and everything. So since you know this podcast का जो basic formula मैंने बनाया है is equal to S. Because मैंने A+B the whole square पढ़ा, Pythagoras theorem पढ़ा. I am not using anywhere in this life, and I don't know if you are using it or not. But S is equal to S. That is struggle is equal to success. So what's your say in this? What's your thought in this? And what you want it to convey it to people? Whether this formula is right or wrong. Struggle equals to success is correct at certain point, but it's also more about being more kind and following your ethics. Right. Today, ethics has no value whatsoever. It is zero ethic world. Okay. तो मैं अपना, मुझे लोग बोलते तो अपना एथिक का झंडा लहराते रहे, बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी. But it's not like that. I am somebody, if I've worked with you and if somebody else comes and wants to work with me and that person I know via you, I would keep you in loop. Right. You know. And here people are just busy cutting all the lines in between and you know moving on direct. जो हमारे इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट में तो सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ टैलेंट, आई रिप्रेजेंट लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज. तो हमारे पास प्रोडक्शन हाउसेज भी आते हैं, हमारे पास मीडियाज भी आती है, ब्रांड्स भी आते हैं, एंड दे ऑल वांट टू गो डायरेक्ट बिकॉज शायद उनको कम प्राइस में मिलेगा. बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हैविंग एन एजेंसी इन बिटवीन इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू. यू नो टुमारो इफ समथिंग हैपन्स at the event or during the shoot, having an agency can always be a support hand, right? If you cut them, you're not going to be able to handle the celebrity or the talent properly well. So that is one thing. So ethic is very important. So ethic really helps you to get successful because it builds you. It is actually your integrity that builds you. ये struggle बहुत जन करते हैं यार, but जो ethically struggle करके जो आप कर रहे हो काम, तो आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हो. अदरवाइज द शॉर्ट टर्म सक्सेस इज नॉट गोना हेल्प. And with this, I'll say that if we know Tata today, it is because of ethics. So if Tata is inspiration of thousands of youth, lakhs of youth, and the people, it is because of ethics. It is simple, yeah. Business with ethics goes hand in hand. आप पैसा जितना मर्जी कमा लोगे, बट कब्र में नहीं लेके जा पाओगे. वो उधर जाना तो उतनी जगह पे है, जलना भी उतनी जगह से है. तो फिर वो ethics और ego is something which ethics people should have and ego people should not have. So success is equal to struggle. Struggle is equal to success is always goes hand in hand. I feel that. But उसके ज़्यादा जैसे कि हमें एक और चीज़ पता चला है, that is ethics. जो लोग भूलते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी के नाम खत्म होती जा रही है कहीं ना कहीं. So there is no meaning to your word. You know, my clients जो मेरे साथ 2010 में है, आज भी मेरे वो clients हैं. There are clients I've working with them for 8 years.
you know, throughout. And if they are not working with me, they are still my friends. We party together. जब कुछ काम मेरे related project आएगा, they come back to me. So that comes because I am somebody who keeps my word. Okay, I might deliver what I might over deliver, but I will never under deliver. इसलिए मैं हमेशा बहुत मुझे ना मेरे एक it's a very funny story. One of my client told me, you know, short sell yourself. You need to show people more of what you are. You know, तू दिखाती ही नहीं है अपने आप को. Look at people who are 1/10 of you and they show off so many big things कि उन्होंने ये किया वो किया इधर न्यूज़पेपर में डाला यहाँ डाला वहाँ डाला. Why you don't show when you have something to show? And I feel like I don't need to show because people I've worked with and people who know me in the industry, they come looking at me. You know, वो मेरा नाम सुन के अच्छा ऋतिका, रू मीडिया, रू एंटरटेनमेंट, लाइसेंसिंग कॉर्नर, ये सुन के आते मेरे ना पास. मुझे जाना नहीं पड़ता है. और ऑनेस्टली चीनू, इन इट्स लास्ट 13 years, इट्स बिन दिस January, इट्स माई रू मीडियाज 13th anniversary. आई हैव नेवर पिच्ड इन माई लाइफ टू एनी क्लाइंट. अब तक हमने जितना भी सर्वाइव किया है, टचवुड, इट इज़ ओनली विद द गुडविल एंड द ब्रांड रिकग्निशन, वर्ड ऑफ माउथ. Never in my life we've created a pitch deck for any brand. So I'm happy, and we've catered more than 500 plus client. India and internationally I'm known. You know, a lot of countries like Hong Kong, Las Vegas, London, Japan, China, they invite me. Their ministries invite me to represent India, to talk about India. I've worked with a lot of celebrities to extend their brand. उनकी अपनी product line लाना, तो वो काम से आता है. कितना भी आप शो ऑफ कर लोगे उससे नहीं आता. इन द एंड व्हाट्स योर हेल्प्स. डेफिनेटली यार, भेजा सबके पास है, वापरना है कि नहीं वो हमें सोचना है. क्या उसको म्यूजियम में रख के जाना है, बाद में इसके अनयूज्ड भेजा है मेरा. आई फील किसको लोगों को मिल के ना ऐसे ही लगता है मुझे कि इसको अपना ना ब्रेन दान करना है. नहीं, इसको दान करना है म्यूजियम में, सो दैट इट इज़ अनयूज्ड ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन, so that he get recognized that way. Because small things, and then you have to tell those people and convey those people that way that यार ये तो basic thing है जो आपको पता होनी चाहिए थी. It is not rocket science. So that way, and definitely यार, जो countries शायद नाम सुने, ये सब dreams है सबका घूमने का, और तुम घूम के आ चुके हो. So I envy you here. So I want to travel all these countries, and travel is always fun to know more people, different cultures, and it gives you it grounds you. Simple as that. डेफिनेटली उधर जाके ना हमें अपनी औकात पता चलती है कि हम क्या है और हमें और कितनी मेहनत करनी है. डेफिनेटली वो ग्राउंडेड रहना चाहिए. तो एक बार ना कर्जा लेके बाहर जाओ, पर जाओ, और वहाँ पे जाके ना आपको लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो. कर्जा लेके मत जाना. नहीं, कर्जा लेके जाओ, कर्जा चुका भी देना. पर सो ऋतिका, बेसिकली सिंस यू आर एन इंस्पिरेशन टू वुमेन, ठीक है, एंड एक सिंगल वुमेन हु इज़ टेकिंग दिस किंगडम, और आई से कि ये जो आपने अपना साम्राज्य लेके साथ में चल रहे हो, तो ऑब्वियसली देर आर डिफिकल्ट्स, देर आर चैलेंजेस विच यू हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. बट what is that one message, और what is that strong message जो शायद आप उन फीमेल्स को देना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं, या उन फीमेल्स को देना चाहेंगे जो अपना खुद कुछ भी करना चाहते हैं, या जॉब करना चाहते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं, या हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, या घर पे रहना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग मैसेज टू देम? There is only one message for every woman. Please be financially independent. आप किसी पे डिपेंड मत हो कि माई ब्रदर इज़ देयर टू प्रोवाइड मी, माई बॉयफ्रेंड इज़ देयर टू प्रोवाइड मी, माई हस्बैंड इज़ देयर टू प्रोवाइड फॉर मी. नो, बिकॉज व्हेन यू गेट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, you are giving away your power to live the life that you know it's meant for you. You know, हम बहुत सी women know they're very complex and very simple in you can't take it talking from your experience, but we're very simple people and yet we are very complex. हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा टाइम चाहिए होता है लोगों का, ठीक है, स्पेशली द पीपल वी लव, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारा हस्बैंड हो, हमारा पार्टनर हो, कोई भी हो. That's all we want, the time and the love. But हम उस चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं. We don't focus on ourselves. So मेरा एक ही मैसेज है कि आप खुद पे फोकस करो. ये जो हमारे दिमाग में हमने एक पिक्चर बना के रखे ना कि this is how we should be,
दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू बी, वो निकालो पिक्चर, यू नो, उससे बाहर निकलो, अपने दायरे से बाहर निकलो. ज़रूरी नहीं है कि हर विमेन का एम हो कि वो काम करे, एंटरप्रेन्योर बने. I have a best friend. She doesn't want to work. She just is happy getting married and taking care of the family, and I appreciate that part. तो ऐसी भी women हैं. But finance अपना खुद देखो. कल को अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, या मुझे इस इंसान से दूर होना है, या मुझे अकेले रहना है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली. आपने अपना रास्ता बनाया हुआ है. कुछ नहीं तो एक, अगर हस्बैंड आपको मंथली पॉकेट मनी दे रहे हैं खर्चा करने के लिए फॉर द एक्सपेंसेस, उसमें से बचाओ और एक सीक्रेट सेविंग अकाउंट रखो. मेरा खुद का एक सीक्रेट सेविंग अकाउंट है विच आई डोंट टच, सो एक कंटिजेंसी फंड हमारा हमेशा होना चाहिए. और खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टू अंडरस्टैंड. मैं बहुत वीक हूँ, मेरा मैथ 2+2 इज़ नॉट 4, इट कुड बी प्रोबेबली some dancing numbers. So my math is terrible, but I am learning. Even now I am learning, So आपको वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. बेसिकली अगर आपको जैसे कि XYZ बिजनेस भी स्टार्ट करना है, सो उसके लिए आपको अपने ही फाइनेंसेस को यूज़ करना है और अपने फाइनेंसेस के साथ ही आपको वो बिजनेस स्टार्ट करना है. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग बिजनेस में कभी खुद का फंड नहीं लगाना चाहिए. ये गुजराती नॉलेज है. हम कुछ यही फॉलो करते हैं. दिस वाज ऑन पर्पस क्वेश्चन बिकॉज पीपल ऑलवेज ले हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आज मेरे पास लाख रुपए जमा है, मैं धंधा स्टार्ट कर रहा हूँ. सो दिस वाज फॉर देम. ये बहुत गलत आउटलुक है कि आपके पास लाख रुपए है और आप लाख रुपए धंधे में डाल रहे हो. आपके पास लाख रुपए है, आप ये सोचो आप दूसरा लाख रुपए कहाँ से ला सकते हो. फिर वो 2 लाख आप धंधे में डालो, उसमें से 50,000 बचाओ और उसको रखो सेफ साइड. कि क्योंकि जब हम बिजनेस रन करते हैं, मेरे साथ हुआ है कि आई हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग आई हैड इन अ प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं. सो बहुत सी चीज़ें होती है कि मैंने एक आई सेलिब्रिटी करके मैंने एक पोर्टल बनाया था जहाँ पे हमने सारे मीडिएटर्स, वी वर सपोज टू बॉयकॉट देम एंड वी वर सपोज टू इंटरेक्ट विद आर्टिस्ट डायरेक्टली. But we realized that no matter how much we try, there will be the managers and there will be third person always into the entire chain of connection. So वो fail हुआ project and उसमें हमने बहुत अच्छा खासा पैसा invest किया था and we failed. So it's not कि आप खुद का पैसा ही डालो, आप बचाओ. क्योंकि अगर आपके पास खुद के पास survive करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, there is nothing for you to come and bounce back. तो वो bounce back की वजह से आप बचाओ. आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरे पास 1 लाख है तो मैं डाल दिया. आप 1 लाख डूब गया तो क्या करोगे? घर बैठोगे. राइट. सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस, आई एम श्योर दैट उनकी भी यही मिस्टेक रही होगी इन बिजनेसेस. बिकॉज जब बिजनेस ड्रॉप होता है, एक तो बिजनेस ऐसा है कि वो आपको 200% देना पड़ता है फर्स्ट. सेकेंडली इट इज़ ऑल योर हार्ड वर्क, योर लक एंड एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड देन योर बिजनेस फ्लरिश. यू नीड टू गिव दैट टाइम एंड यू आर इन अ कांस्टेंट प्रेशर. जो भी चीज़ आप प्रेशर में रह के करोगे वो चीज़ कभी 100% हो ही नहीं सकती. सो मेरा यही है कि जो भी चीज़ आप 100% और प्रेशर में लेके काम करोगे तो वो आपका सक्सेस नहीं होगा. क्योंकि प्रेशर में आप हमेशा हाफ हार्टेड चीज़ करोगे. क्योंकि आपको ये देखना है मुझे कल इसकी सैलरी देनी है. लाइक अभी भी जब हम बात भी कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन माई टीम इज वर्किंग सो आई कैन कम एंड सिट विथ यू फ्रीली, राइट. बट एवरी मंथ एंड स्टार्ट ऑफ द मंथ, कल 10 तारीख है, हमारी 10 तारीख को सैलरी होती है. मेरे दिमाग में होता है अकाउंट में ये क्लाइंट का पैसा आया, वो क्लाइंट का पैसा, अरे शिट इतना पैसा कम पड़ रहा है, हैव टू अरेंज बिकॉज सैलरीज देनी है. वो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है. मेरा 25 तारीख से लेकर 10 तारीख तक दिमाग बंद रहता है. मुझे नहीं पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या फंड्स आ रहे हैं, कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं होगा मैनेज. एंड इमरजेंसी फंड्स आर द फंड्स विच आर मोस्ट रिक्वायर्ड. आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है. आपको हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी बीमारी है, हमें कुछ नहीं होगा. जो भी होगा ना सामने वाला होगा, हमें कुछ नहीं होगा. स्पेशली इन कोविड वी सॉ दैट एवरीबॉडी वाज लाइक हमें कोविड नहीं हो सकता, वही सारे बेड लेके बैठे हैं. राइट. सो इज समथिंग विच वी नीड टू लर्न दैट इमरजेंसी हमारे साथ भी आ सकती है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर. एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि आप खुद के लिए पैसा रखो. That is financial independence, where you need to keep money for yourself and not for your people
ऑब्वियसली यू नीड टू प्लान योर फाइनेंसेस दैट आपके पेरेंट्स के लिए भी पैसा है, आपके आपकी अय्याशियों के लिए भी पैसा है, बट आपके लिए पैसा क्या है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन ओनली जंप टू एनी कंक्लूजन, any businesses, any jobs, anything. That is what I have learned through you today, that you need to keep money for yourself first to get into the business. मेरे डैड का एक रूल है कि कोई भी खर्चा करना हो 10 बार सोचना, sleep over it for 3 days. If it still bothers you, then do that expense. And if you want to splurge, like जैसे बहुत लोगों के पास पैसे आ जाते हैं या ये चीज़ होती है, people buy expensive cars, they buy a house, again all those things are on loan, they are all on EMI. मेरे डैड का एक 6 महीने का खर्चा, जब तुम्हारे पास 0 इनकम आ रही है, 6 मंथ्स का सारे एक्सपेंसेस मिला के आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ना बोले तब तक मत करो कुछ. Now we have come to last segment, last ending of our podcast, and definitely the end should be always about humanity, because I have always believed that humanity comes first. एंड लोग बोलते हैं अलग अलग पॉलिसी, सो मैंने एक बोला है कि ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. लोग ऑनेस्टी बोलते हैं बट मैं ह्यूमैनिटी बोलता हूँ इस मामले में. सिंस द नेम ऑफ द पॉडकास्ट इज इंसान बनो पॉडकास्ट, आई वॉन्ट यू टू शेयर समथिंग अबाउट इंसान बनो, or any thoughts about humanity, इंसानियत, any example of humanity. I'm sure that you laughed it off, and I know your cunning answer now कि अभी वो क्या होने वाला है इंसानियत के ऊपर, but yes, shoot it out. करंटली जो हमारे वर्ल्ड में, इंडिया तो छोड़ ही दो, इंडिया का तो अभी मुझे बात ही नहीं करना जो करंट सिनेरियो चल रहा है, बट जो वर्ल्ड में हो रहा है, वी ह्यूमंस हैव फॉरगॉटन हाउ टू बी ह्यूमंस. ओके, सो ह्यूमैनिटी तो बहुत दूर का बात है, पहले इंसान ही बन लो, है ना. तो वो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी हैव ज़ीरो काइंडनेस लेफ्ट, वी हैव ज़ीरो कंपैशनेट लेफ्ट. वी like if I'm happy with, right now I'm talking to you, I'm happy, I'm smiling, I'm giggling, I might be miserable inside, but I will not let you know. आप कौन हो, मैं क्यों बताऊँ आपको, है ना. एक तो हम सारे बहुत ही, जो ये जेनजी जनरेशन है, ये मिलेनियल जनरेशन है, हम सब इतने सूडो इंडिपेंडेंट के नाम पे इतने अकेले हो गए हैं कि हमारे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए. जब हमारे पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, हम अपने आप में ही सड़ते जाते हैं, एंड इट किल्स अस इन फ्रॉम इनसाइड. व्हेन इट स्टार्ट्स किलिंग यू, देयर इज नो लव एंड कंपैशन लेफ्ट, बिकॉज देन यू स्टार्ट हेटिंग एवरीबडी. सो यू नीड टू रिमूव दैट एंगर, दैट हेट्रेड. मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मेंटल इलनेस है या आप डिप्रेशन है या एंजाइटी है, वो भी हो सकता है. इवन आई हैव एंजाइटी अटैक्स, आई गेट एंजाइटी अटैक्स, बट आई मे लुक वेरी नॉर्मल टू यू, आई मे लुक वेरी नॉर्मल टू यू. सो उसका मतलब ये नहीं कि मुझे एंजाइटी अटैक्स नहीं होते हैं, मेरे को डिप्रेशन नहीं है, मैं हंसते गाते रहती हूँ, बट प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सबके ही लाइफ में प्रॉब्लम है आज के टाइम पे. सो ओनली थिंग इज हुएवर यू ट्रीट विद काइंडनेस, ट्रीट विद लव. प्यार से बात करो हर किसी से, सारे ही अच्छे हैं. अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो एक पर्टिकुलर मोमेंट है, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन या सर्कमस्टांस है जिसमें वो गलत इंसान है. तो वो समझने की कोशिश करो कि उसने वैसा क्यों किया, एंड हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ इट, rather than name calling and blaming and saying ये तो बुरा ही है. वो बुरा क्यों बना वो सोचो. Probably the circumstances he lived with is wrong. The environment he lived with, he's grown up with a toxic environment, with a toxic family, with a violent family. He has these issues, or she has that issues. So I think the kindness and compassion is very much important. Or I think once we start treating each other with more love, things will be easy. So whenever I am talking to someone, I am very polite, I am very genuine from heart, I am very transparent from heart. So it is about giving love, and it is not about, it is not every time about sleeping around with someone. Because it has happened that when a man is talking politely to a woman, it is always think that कि ये flirt कर रहा है या ये कुछ और चाहता है मेरे life से, and that thing I have to cut down, because when I am talking to someone, I don't want to sleep around with that person. I don't want to misbehave with that person, but I want to share my warmth and love, because I know internally what is a human without warmth and love. I've been suffering in this pattern where I've been craving love, I've been wanting love and warmth, but
when I try to give it to people, and then when it is a zamana of social media, लोगों को लगता है हमारे पास बहुत प्यार है. जब internally when you sit down and especially the sun goes down, the moon comes up, you know who are you and with whom you are talking, right? Correct. And you know वो किस लिए होता है पता है? We are comparing everyone's we are comparing our behind the scenes of the life with somebody else's highlight reel. यू नो सो अभी आप प्रोबेबली ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट का आप रील बना के डालोगे, लोगों को लगेगा ओ एवरीथिंग इज सो नाइस, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, बट दे डिडंट सी the amount of coordination we had to do, you know, back and forth, cancellation again, you know, thinking me coming down all the way from Andheri to here. It's a challenge, you know. So you've overcome all that challenge. We've sat, we've waited for hours, and then we are finally doing this. So people don't see all that. So वो एक प्रॉब्लम होती है कि हम बोलते हैं अरे ये तो मालदीव्स घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है. ट्रू. एंड ये भी आ गया ना यार ऋतिका कि आज लोग सिर्फ अपनी अच्छाई दिखा रहे हैं, अपना ग्लॉसी दिखा रहे हैं, फिल्टर दिखा रहे हैं, एंड देन पीपल आर नॉट शेयरिंग द रॉ फैक्टर टू पीपल बिकॉज दे फील दैट दे विल बी सीन डाउन इन द लाइफ और दे विल बी जज्ड, एंड दिस जजमेंट फैक्टर इज टेकिंग आर यूथ डाउन टोटली. आई विल से कि अगर कहीं पे जजमेंट आ रहा है ना, वहीं पे डिप्रेशन. So you're ending it with what I said in the beginning of the podcast, that when I post emotional quote, people tell me that why you so vulnerable. You know, so we're coming back on that, that you know, people think you are low, people will use it for their benefit, people will think कि ये तो हमेशा दुखी रहती है लाइफ में, you know, but it's not the fact. You know, it's being able to express. I think there is nobody as powerful as somebody who's able to express themselves. I am personally that person जिसको हेल्प मांगने में बहुत, मतलब फॉर मी इट्स लाइक कोल्ड ब्लडेड थिंग, यू नो, कि मैं हेल्प नहीं मांग सकती, मेरे में बहुत प्रॉब्लम है ये चीज़. एंड इट्स नॉट विद द ईगो, इट्स जस्ट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. सो it takes a lot, and when somebody like me who asks for help and don't get it is, then it is a setback. Yeah, it is like then the end of the story. So I think somewhere we all have to be इंसान बनो. यस, सो इंसान बनना ही चाहिए. एंड इंसान बनना है तो मैं बोलता हूँ कि कुत्तों से सीखो. डेफिनेटली आप इंसानियत समझ आ जाएगी, हाउ हम्बल दे आर, हाउ लविंग दे आर, विदाउट एनी ग्रीड कि ये क्या करेगा मेरे साथ. सो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न फ्रॉम एनिमल्स दैट हाउ यू नीड टू बी ह्यूमन. So with this very heavy question, I don't want to end my podcast, but thank you so much, sweetheart, for being here. You are a murat of love, and I hope that you keep spreading love the way you are doing right now. And I hope to I hope we can work together in future and do multiple things together. That is something I always wish to. But I wish to see you touching the stars and moon and galaxy every time. So that's from me. Thank you so much for inviting me, and the kind of work that you are doing is hats off. Thank you so much. Thank you so much, team behind the camera. Thank you so much, everyone who is watching this, and for your patience and for your love. With this, we are ending the next episode of Insaan Bano. Be tuned, be with me so that you can see the next episodes and next episodes and next episodes. See very soon. कोई brand को collab करना है तो please आ जाओ यार. We need people to support us, to support this podcast where we bring out only the inspirational people. Thank you so much. Love you all. Take care.